Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Your first impression once you are going for ISSB has a significance in the exams, and you have a significant importance in your ISSB preparation. किसी भी एग्जाम में जाते हैं, your first impression always gives you somehow a very good result. Once it is a very good impression that you are able to create in front of the selectors. So similar goes for the ISSB. Your first impression is very much important. So first impression means okay, whenever the very first thing that is appearing in ISSB is your first impression is through your ISSB form that is already been sent for maybe 1.5 or 2 months before. तो उसने जो आपने वो भेजा है उस पर उसकी आपकी जो इम्प्रेशन बनी है डेट इज़ हैज़ अ वैल्यूबल इम्पोर्टेंस जो वहाँ जाती है। उससे पता चलता है कि आप किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड को लेकर आ रहे हैं, किस तरह की हैबिट्स को लेकर आ रहे हैं, फैमिली एजुकेशन सेटअप क्या है, स्पोर्ट्स सेटअप्स क्या है, और रिलेटिव्स और आगे पीछे किस जगह पे रिहाइश रखी हुई है, किस तरह की एजुकेशन है। डेट इज़ द इम्प्रेशन डेट अगर इफ़ यू आर हैविंग अ गुड इम्प्रेशन फैमिली स्ट्रक्चर ऑल्सो, अगर जब वो होता है तो डेट हैज़ अ वेरी गुड क्या कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ ISSB बिफोर योर अराइविंग इन ISSB सेंटर्स। सो अब उसके बाद जब आप एग्ज़ाम पर आ जाते हैं तो दी वेरी फर्स्ट डे यू आर गोइंग टू फिल वेरियस फॉर्म्स, द बायोडाटा फॉर्म, पर्सनल PIQ फॉर्म्स एंड एटसेट्रा सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो वो डेट इज़ हैज़ द again having a very good reputation if it is being filled sensibly and आंखें कान खोल के आपने अगर वो भरा है तो वो that again it has a very good it has an importance and it has a very good impression that you will be able to project in front of the selectors on the जब आप आ जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के एग्ज़ाम पे, तो साइकोलॉजिस्ट के एग्ज़ाम पे आप देखें कि आपका वॉट है 4 पेजेस होते हैं, यू हैव टू राइट 100 वॉट्स। सो वेरी फर्स्ट पेज दैट इज़ हैविंग द 25 सेंटेंस ऑलमोस्ट, तो वो इट हैज़ अ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, इट कैन क्रिएट द इम्प्रेशन दैट वेरी फर्स्ट पेज इफ़ इट इज़ रॉन्ग इन मैनी एस्पेक्ट्स, राइटिंग के स्टाइल से और क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से, सो यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन बिकॉज 4 पेजेस आर योर फर्स्ट पेज इज अगेन हैविंग द इम्पोर्टेंस बिकॉज इट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी what. Similar goes for the half sentence, pointer picture story. The first glance on the half sentence or on the picture pointer stories, the first glance is your first impression. Again, it has the it creates some effects and it force the somehow the selectors के वो आपकी तरफ तवज्जो करें. Very important point if you are understanding this thing. You are going for the lecturate and for the group discussion. The lecturate, जो lecturate is a very important thing because it is your solo appearance in front of the selectors. और वो उसमें जब आप ये जाके देते हैं तो अगर आपका स्टार्ट ही अच्छा नहीं है किसी लेक्चर का अगर स्टार्ट ही अच्छा नहीं है तो वो इम्प्रेशन ही कोई नहीं बनाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जी बेनिफिट्स ऑफ को एजुकेशन, सो 90% लड़का जो है वो या जो कैंडिडेट है वो स्टार्ट करते हैं को एजुकेशन इज़ द वन वेयर दी both the genders are sitting and they are studying together. Now this is not creating an impression. They don't want to listen that what is the meaning of co-education. They want it is your appearance and it is your impression that you are going to give that. क्या मैं तो सबसे पहले ये देखूंगा जी co-education क्या है, 12वीं पढ़ के co-education की definition दे रहा है तो this is not a good projection of your personality. Similar goes for the group discussion. मछली मार्केट बनी हुई है, लड़के बातचीत कर रहे हैं. You're starting at what time you will take the initiative and at what time and how you are going to start the topic. This is again create an impression and that impression will go long way throughout the journey of the ISSB with respect to a particular selector. Group planning है, military planning है. आपका सबसे पहले जो मिलिट्री प्लान होता है या ग्रुप प्लानिंग जो आप प्लानिंग करके देते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर, that also has the a good it has an importance. अगर आप उसको समझें तो उसकी इम्पोर्टेंस है अगर वो आप करके देते हैं बिकॉज द सिलेक्टर इज गोइंग टू very first thing that he is going to check it is his glance on the उसकी जो पहला लुक है towards the military plan. It shows that how the
विच टाइप ऑफ कैंडिडेट इज़ दैट एंड कि उसके अंदर जो एनालिटिकल सोल्यूशन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन है एंड द ऑब्जर्वेटरी पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मिलिट्री प्लान, उसके अंदर वो प्रोजेक्शन हो रही है नीड में, एंड दैट कम्स ऑन द वेरी फर्स्ट ग्लांस। पढ़ना दूर की बात है, पढ़ना सेकंड स्टेप है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द ग्लांस। सिमिलर वंस यू गो आउटसाइड फॉर द क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, योर फर्स्ट इंप्रेशन, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, बिफोर स्टार्टिंग हाउ यू आर प्लानिंग एंड हाउ यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स, दैट इज़ द इम्प्रेशन। आगे बीच में फट्टे रस्से लगाना तो कोई भी लगा सकता है। कमांड टास्क जो अगर एक्चुअल में जो आप कमांड करने हैं, दैट हैज़ पता नहीं कितनी दूर की बात है, योर वेरी फर्स्ट interaction with the GTO in your personal interview and understanding of the task, calling the candidates, giving them brief, giving them plan, your planning before starting of any command task, that has the significance importance। वो उस चीज़ की वो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, एंड दैट वेरी मैंने आपसे कहा कि द फर्स्ट इम्प्रेशन हैज़ द वैल्यू इन एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंडिविजुअल टास्क, लोग जो हैं 12-12, 14-14 करके भी पास नहीं होते, और 5-6 करने वाले भी पास भी हो जाते, फेल भी हो जाते, 8-9 वाले पास भी हो जाते, फेल भी हो जाते, बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, हाउ यू आर स्टार्टिंग, हाउ यू आर कमिंग एंड यू आर बिकमिंग रेडी फॉर द टास्क, दैट ऑल्सो हैज़ द इम्पोर्टेंस। और ये कभी भी ऐसे आराम से घर बैठे आपको नहीं आएगा। इफ़ यू गोइंग फॉर इंटरव्यू का तो एक अजीब से ही वो खाता बन जाता है ना कि डिप्टी प्रेसिडेंट इज टेकिंग द ग्रुप डिस्कशन फर्स्ट एंड he has already seen you and that was your first impression, and before that first impression the very first impression was your forms ICB forms, और जो डेटा आपका गया है, फिर अगेन your impression जो बना है ग्रुप डिस्कशन में, एंड उनकी बेस पे नाउ यू आर डूइंग द इंटरव्यू। मोस्टली इसीलिए आपने देखा होगा कि सिलेक्टर्स जो हैं जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते बहुत से लोगों पे, बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग द खाना पूरी, बिकॉज करना तो है इंटरव्यू, कि उस इंटरव्यू में देखेंगे शायद कोई अच्छी चीज़ निकल है। Again, once you are entering into the room and you are dressing and how you are walking towards the selector and how you are sitting and how you are taking the permission, that has the importance। उसके बाद जाके कहीं इंटरव्यू में नाम नंबर और ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, उससे पता चलता है। अदरवाइज तो फर्स्ट इंप्रेशन को कभी भी ना ढीला समझें, फर्स्ट इंप्रेशन ही है, फर्स्ट इंप्रेशन है जो सिलेक्टर, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म of the ISSB, 100+ students at a time going in these centers, and you have to interact with the 3 selectors। तो एक सिलेक्टर के पास जितने भी बंदे होते हैं तो उसके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो बैठ के हर बंदे को बारीकी में देखे। Once he is knowing that he is not having that potential to qualify ISSB, जब उसको पता चल जाता है कि he is not having the potential to qualify ISSB, why he should give the time to the individual। तो ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो कैसे टाइम मिलेगा, प्रिपरेशन की तो कोई मैच ही नहीं है प्रिपरेशन करना, बट योर विद द प्रिपरेशन योर फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ यू अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट कैन नॉट बी understood and cannot be memorized once you are sitting at home and you are taking the guidance. For the guidance also, and for I always say that you must join academy, and that academy who give you particular time, individual time, focused time, spend time on you, on your sitting, on your behaving, on your talking, on your action, on your motion, whatsoever you call it। So वो उस पर पर्टिकुलर फोकस टाइम देगा आपको, देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर ISSB। अदरवाइज जो है वो 99% जो है वो तो लड़का फेल होकर ISSB से आ जाता है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड फॉर दिस मैटर। यू मस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड मस्ट ज्वाइन अकेडमी, एंड ज्वाइनिंग अकेडमी करते वक्त हर चीज़ को बड़े गौर से देखें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।